Good morning, everyone. Okay. Whenever I ask you, then you will speak only. Otherwise, there is no need. See the little information. Class 10th English first flight book we are reading. On the screen, it's okay. Madam writes the bus. And this is lecture number 3rd of the same chapter we are reading. Madam writes the bus. This is the lecture number 3rd. And this is page number 121 on the screen. See this, everyone. Second last para we are going to start. When this was said by somebody that you should not see outside, and she was feeling very irritably. और फिर कंडक्टर कहता है कि भाई यस, वो कहती है कि भाई आई एम 8 years old, 8 साल की हो चुकी हूँ मैं, अभी बच्ची नहीं हूँ. Wally talks like this in a confident way. The way she talks is very commandingly, and their conductor replies to her. Conductor जो है वल्ली को रिप्लाई करता है कि भाई of course how stupid of me, 8 years. कि भाई हाँ ठीक है भाई, मैं काफी stupid हूँ, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि आप 8 साल की हो चुकी हो. Just imagine 8 years old girl having ride on the bus from village to town alone. All the calculations or recalculations plans or managing the fare also, right? वो सारी चीजें उसने मैनेज की, किस तरह से की. Then she is just riding on the bus and there people are just talking to her. Why it is? Because she is very small, little. अब 8 साल का बच्चा कितना होता है? I suppose in LKG और first standard इतना ही होता है ना? ये होता है ना? Second standard ज्यादा, second इतना ही होता है. So the people are sitting in the bus are much concerned about that little girl. She is standing on the seat. Seat पर खड़ी होकर के वो बाहर देखती है. Just view outside the bus. उसको अच्छा लगता है. She looks at. So the people inside interferes her कि भाई you should not stand up, नहीं खड़े होना चाहिए, बैठ जाओ, गिर जाओगी. You might meet the accident. Accident हो सकता है. That can hurt you. Injuries can take place. So she talks in a commanding way and she says that I am of 8 years old, I'm not a child. Like this she talks. इस तरह से बातें करती है वो. So conductor जब इंटरफियर कर रहा होता है तो फिर apologize फील करता है. He talks in a apologetic way कि भाई ठीक है, of course वो कहता है कि भाई मैं तो मूर्ख हूँ, मुझे नहीं पता है कि आप 8 साल की हो चुकी हो. फिर उसके बाद क्या होता है? The bus stopped, some new passengers got on. Now the next incident starts. After this stop, बस जो है नेक्स्ट स्टेशन पर रुकती है, कहीं भी जो स्टॉप होता है, स्टॉपेज है, वहां पर रुकती है बस, और कुछ पैसेंजर्स जो है वहां से चढ़ जाते हैं, गेट ऑन. एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर द टाइम. और कंडक्टर जो है उनकी टिकट्स काटने में थोड़े समय के लिए बिजी हो जाता है. Afraid of losing her seat, Wally finally sat down. और फिर क्या होता है? कुछ पीपल जो है गेट ऑन हो जाते हैं बस में. वल्ली को डर होता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि कोई और जो है उसकी सीट पर बैठ जाए और वो खड़ी रह जाए और उसको फिर बाद में बैठने में प्रॉब्लम हो. तो वो क्या करती है? वल्ली सीट के ऊपर बैठ जाती है, रिलैक्स, बिल्कुल एकदम से. An elderly woman came and sat beside her. What is that? Small fly, huh? I was thinking that that's not happening on the screen of the laptop. All right, let's continue. An elderly woman came and sat beside her. अब होता क्या है कि एक बुजुर्ग सी महिला आती है और उसके पास बैठ जाती है, उसके नजदीक बैठ जाती है. Are you all alone, dear? She asked. Wally, as the bus started again. जैसे ही बस दोबारा चलना शुरू करती है, वो एल्डरली वुमन जो है वल्ली से क्वेश्चन पूछती है, क्या तुम अकेली हो? Are you all alone? See, there are two questions. First one is she is a bit concerned because that girl is very small, little girl. Second one, on the other point of view, if we talk about, she is very cunning, or she shows herself to be a bit smarter. So let's see what she takes about. कि भाई जो वल्ली है वो क्या लेती है, उसको किस तरह से कंसर्न करती है. So Wally found the woman absolutely repulsive. Repulsive means like
when there are some see, this is a practical example before us. When we read the text, we find out the things are relating to our lives. You will find some people in your life, if you ever meet them first time, you will dislike them, you will hate them just by looking at them. But some people are so lovely, you like them, you just adore them. देखते ही अच्छा लगता है. That first impression is the last. किसी का बन जाता है तो किसी का खत्म हो जाता है. Someone can make it or someone can mar it. खत्म कर देता है. So this happens in everyone's life relating to us. So the same happened with Valli when she saw that elderly girl. She hated her too much. Hate किया उसको, एकदम से dislike किया. जैसे ही उस elderly woman ने उससे बात की. Repulsive means disliking. So big holes she had in her earlobes. Earlobes means the soft part in the down of ears. इसमें वो कहती है कि इतने बड़े बड़े होल्स बने हुए हैं. ईयरलॉब्स, इसको ईयरलॉब्स बोलते हैं. नीचे बड़े बड़े होल्स बने हुए. एल्डरली वुमेन है तो उसमें देखो क्या कहती है, एंड सच अकली इयररिंग्स इन देम. कितनी भद्दी इयररिंग्स उसने पहनी हुई है. शी थिंक्स अबाउट दिस. वो अपने मन में सोच रही है वल्ली ये सारी चीजें. एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट. बीटल नट क्या होता है भाई? देयर आर सम पीपल यू मस्ट हैव सीन हु कीप च्यूइंग दैट पान और सुपारी, और कुछ लोग जो है पता नहीं, tobacco. There are so many types of things. In this earlier, अब ये जो woman थी, she used to chew that betel nut. सुपारी इसको हम लोग बोलते हैं. अब वो जो सुपारी चबा रही है, the one who comes in her contact will smell it. वो उसको smell कर सकता है, महसूस कर सकता है कि what sort of smell is this, कि भाई ये किस तरह की है. कुछ तो उसको लाइक करेंगे और कुछ उसको डिसलाइक करेंगे. यू मस्ट हैव सीन पीपल स्मोकिंग. कुछ तो हेट करते हैं, नेवर गो टू द पर्टिकुलर पर्सन हु इज स्मोकिंग, और कुछ उसको लाइक करते हैं, उसके नजदीक जाते हैं. दैट इज कॉल्ड पैसिव स्मोकिंग. इफ द वन इज स्मोकिंग एंड यू आर क्लोज टू द वन, दैट्स कॉल्ड पैसिव स्मोकिंग. और एक्टिव स्मोकिंग जो वो कर रहा है. ऐसे मीन्स जो उसके जो स्मोक वो छोड़ रहा है, रिलीज कर रहा है, इफ यू आर गेटिंग इन द कॉन्टेक्ट ऑफ दैट, दैट्स कॉल्ड पैसिव स्मोकिंग. सेम हियर. अब वो जो बीटल नट च्यू कर रही है, चबा रही है, उसकी जो स्मेल जा रही है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है. दिस वेरीज टू पर्सन. तो हुआ क्या है, वल्ली को ये पसंद नहीं आया. सो वुमन वाज च्यूइंग, चबा रही थी, एंड सी द बीटल ज्यूस दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट. अब वो चबा रही होती है ना, तो उसका जो, यू मस्ट हैव सीन दिस, रेड हो जाते हैं लिप्स, राइट? बीटल नट जो वो च्यू करते हैं, और उनसे एक सॉर्ट ऑफ वाटर, और यू कैन कॉल इट अ स्पिट, थोड़ा बाहर की तरफ निकला रहता है. एंड व्हेन दे टॉक यू फाइंड, यू सी देम, कई बार उनका जो स्पिटिंग है दैट कम्स आउट ऑफ देयर लिप्स. सो वो इसको एक्सप्लेन कर रही है कि बस ऐसा लग रहा था कि अब वो बाहर निकलने ही वाला है उसका, कि बस अब वो निकलने ही वाला है. दैट्स एनवायरनमेंट, द सिनेरियो वाज वेरी वर्स्ट. वल्ली टॉक करती है किसी भी क्षण, एनी मोमेंट वो कहती है कि बस अब हो गया, ये निकलने वाला है. यानी कि हाउ disliked Valli her. उसने कितना उसको dislike किया because of her gestures, of the way she was using that betel nut chew कर रही थी वो. Who could be sociable with such a person? अभी change. Okay. Who could be sociable with such a person? वल्ली सोचती है कि इस तरह के इंसान के साथ कोई कैसे मिलनसार हो सकता है. Sociable means मिलनसार. The one tries to talk or expects like with whom he is going to talk, that one will also reply and will mix up with him or her and will become a kind of sociable, means milansar, or फिर rest of the way pending they'll have a talk. तो वल्ली सोचती है कि कोई कैसे इसके साथ मिलनसार हो सकता है. Yes, I'm traveling alone, she answered curtly, and I've got a ticket too. Curtly means displeasure show करते हुए, means not showing interest. You can take like this. जैसे वो उसकी क्वेश्चन का आंसर देती है, क्या कहती है? I'm traveling alone. ठीक है, मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ. हाँ बोलती है, आंसर करती है कर्टली, अपना डिस्प्लेजर शो करते हुए कि भाई उसको लाइक नहीं करती. एंड I've got a ticket too. और फिर वल्ली उसको ये बोलती है कि मेरे पास टिकट भी है. शो करती है, कंसर्न करती है that I have ticket too. Yes, she's on her way to town, said the conductor with a 30 paise ticket. In between,
the conductor comes and interferes in their talk. An elderly woman and that Valli, they both were talking. उनके बीच में कंडक्टर आकर के इंटरफेयर करता है. कंडक्टर क्या कहता है? Yes, she's on her way to town. वो टाउन जा रही है, सिटी की तरफ जा रही है. कंडक्टर ने बोला with a 30 पैसा टिकट, और उसके पास 30 पैसे की टिकट भी है. That time 30 पैसा used to hold much worth value, right? So उस समय वो कहता है इंटरफेयर किया. Oh, why don't you mind your own business? Said Valli. और वल्ली फिर उसको कहती है कि तुम अपना काम क्यों नहीं करते हो, अपना काम करो. Why don't you mind your own work? कंडक्टर को जो है, she talks in a commanding way, in a rebuking way. Sorry, that he was interfering in between an elderly woman and that small girl Valli. But she laughed all the same and conductor laughed too. और ये कह करके वल्ली हंसने लगती है. Because the scenario was a bit different when the conductor comes. What happens? He talks like this or makes body language like this, that the scenario becomes very jovial. मजाकिया तौर का environment बन जाता है, jovial, right? तो दोनों के दोनों जो है, पहले वल्ली हंसने लगती है ये कहते ही, और फिर साथ के साथ जो है कंडक्टर जो है उसको हंसी में उसका साथ देता है, वो भी हंसने लगता है भाई. But the old woman went on with her drivel means silly nonsense talks. इस तरह की बातें करना, बातें इस तरह की करना कि भाई जो दूसरे को पसंद ना आए. According to her, these talks are really good and these talks should take place, but the other person who is just the victim of her talks, we can say like this, जो किसी बातों को सुन रहा है वो उसको लाइक नहीं कर रहा है, so वो उसको क्या बोलेगा? Nonsense, silly talks like this. So वो जो लेडी है, ओल्ड वुमेन, वो बोलती रहती है, इज इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन? क्या ये सही है कि भाई यंग रेफर्स टू हियर द किड्स, कि छोटे बच्चे को रेफर कर रहा है, ये जो 8 years ओल्ड ये वल्ली है उसको रेफर कर रहा है कि भाई ये जो है यंग पर्सन जो है ये अकेली ट्रेवल कर रही है, क्या ये सही है? दिस इज कॉल्ड ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग ऑफ द पीपल. देयर आर 2 points. एक वो छोटी है ऑलरेडी. सेकेंड, अगर उसको हम लोग अपनी विचारधारा के साथ जोड़ें, देन इट इज कॉल्ड ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग. रूढ़िवादी विचारधारा, बिल्कुल एकदम से घिसी पिटी. लेकिन उसका सेकंड एस्पेक्ट भी तो है, उसका एक दूसरा पहलू भी है कि वो एज में भी तो छोटी है, 8 साल की तो है. तो वल्ली तो अपने अकॉर्डिंग लेगी ना. अब उस बुढ़िया को थोड़ा ही पता है कि वल्ली ने भाई कितने 6 महीने की प्लानिंग है उस बेचारी की, उसने पैसे कैसे जोड़े हैं वो आगे इसमें दिया हुआ, एक्सप्लेन किया हुआ सारा के सारा, यू विल गेट टू नो. तो उसको नहीं पता. सो वल्ली जो है अपने एंगल से सोच रही है और वो जो ओल्ड वुमन है वो अपने एंगल से सोच रही है. क्या ये सही है कि भाई इस तरह की छोटे बच्चे को जो है अकेले ट्रेवल करना? डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन? क्या तुम्हें पता है कि तुम टाउन में कहां पर जा रही हो? व्हाट्स द स्ट्रीट, व्हाट्स द हाउस नंबर, क्या स्ट्रीट नंबर है, क्या हाउस नंबर है? वो सच सिली नॉनसेंस टॉक्स जो है वो ओल्ड वुमन जो है करना शुरू कर देती है अकॉर्डिंग टू वल्ली. यू नीडंट बॉदर अबाउट मी, तुम्हें मेरे बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, राइट? आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वॉली सैड. मैं अपनी टेक केयर कर सकती हूँ, अपनी देखभाल कर सकती हूँ, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है. वल्ली इस तरह से बातें करती है. जस्ट ऑब्जर्व दैट 8 years ओल्ड गर्ल किस तरह से सिचुएशंस को डील कर रही है. दिस वन रिक्वायर्स वेरी एक्टिव रिमार्क और लाइक वेरी एक्टिव टू बी रिस्पॉन्सिबल और आंसरेबल to the one if the one is interfering or talking to you. So see, turning her face towards the window and staring out. और इस तरह से बोल करके उसको ओल्ड वुमन को वल्ली क्या करती है, अपना फेस उठा करके और विंडो की तरफ कर लेती है और उधर देखना शुरू करती है. When that means like you are showing your angerness to the one, you are not interested to talk to the one, that's why you turned your face the another direction. दूसरी तरफ तुमने जो है अपने फेस को कर लिया है. राइट एवरीवन, ये oral comprehensions read out कर लेना भाई सभी के सभी बच्चे. will continue because it's consuming much time. When you get the answer key, you can just note down these. Right everyone, if you have any problem in finding out the answers of these oral comprehension checks, you can ask me anytime. Right, tomorrow also we have live class, you can ask there also. So let's go to the third part of this. अभी तक 2 part finish हुए हमारे. Her first journey, what careful, painstaking, elaborate plans
she had to make for it. Now we are going to see कि भाई किस तरह से उसने प्लान्स बनाए, किस तरह से उसने शुरू किया, हाउ शी स्टार्टेड द जर्नी, प्लानिंग कैसे शुरू हुई सारी सारी. पेन्स टेकिंग मीन्स वो कहता है कि कितने एफर्ट्स उसको पुट करने पड़े, कितनी डिटेल्स उसको कलेक्ट करनी पड़ी टू जस्ट प्लान अ जर्नी, जर्नी को प्लान करने के लिए सारे का सारा. So let's see. She had thriftily saved whatever stray coins came her way. Thriftily means वो कहता है जो पैसे उसको स्पेंड करने के लिए मिलते थे ना, वो इसको इतना केयरफुली खर्च करती थी कि उनमें से आने बचाती थी. 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसे, इस तरह से वो उनको खर्च करती थी. जो भी कॉइन्स उसको स्पेंड करने के लिए मिलते थे उनसे सेव करती थी. वो स्ट्रे कॉइन्स मीन्स यहाँ पर कहते हैं जो खर्च करने के लिए उसको कॉइन्स मिलते थे ना, लूज जिसको हम लोग बोल देते हैं, वो उनमें से सेविंग करती थी जो भी उसके पास आते थे. रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाय पेपरमिंट्स. अब छोटे बच्चे जो होते हैं उनको पेपरमिंट्स अच्छी लगती हैं. पेपरमिंट्स क्या होती हैं? पुदीने की छोटी छोटी जो टॉफियां होती हैं, दीज आर कॉल्ड पेपरमिंट्स. अब वो कहती है रेजिस्टिंग, अपने आप को कंट्रोल करती थी, रोकती थी अपने आप को कि भाई मुझे जो है पेपरमिंट नहीं खानी है, मुझे अपनी सेविंग करनी है बस में राइड करने के लिए. रेजिस्ट करना मीन्स अपने आप को रोकना. टेम्पटेशन, जो लुभावनी पेपरमिंट्स जो थी उसके लिए वो खाती थी, यूज करती थी जब भी उसको पैसे मिलते थे. टॉयज, बलून्स एंड द लाइक. एंड फाइनली शी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे. यानी कि जो खिलौने वो खरीद सकती थी, जो बलून्स वो खरीद सकती थी, इस तरह से अपनी इच्छाओं को दबा करके, रजिस्ट करके वो जितना बचा सकती थी उसने बचाने की कोशिश की. और एट लास्ट शी सेव्ड 60 पैसे. उसने 60 पैसे जो है इस तरह से अपनी इच्छाओं को दबा दबा करके उसने जो है 60 पैसे कलेक्ट कर लिए. हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन particularly that day at the village fair. Now just imagine you are going to the fair and you have some another plan to spend money, but you can't spend there at the fair. अब फेयर में आप स्पेंड नहीं कर सकते. So same happened with वल्ली. वो फेयर में जाती है, गांव में जो फेयर है, और वो अपने आप को पर्टिकुलरली रेजिस्ट करती है, रोकती है कि अब वो फेयर से कुछ भी परचेज नहीं करेगी बिकॉज शी वांट्स टू राइड ऑन द बस. बस में राइड करना चाहती है. But she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round, even though she had the money. merry-go-round क्या होता है? झूला देखा होगा कभी आपने. इफ यू एवर सी इन आवर लोकल्स, आजकल नहीं लगते हैं, बट इफ यू एवर गो टू सिटी, करनाल, पानीपत, बड़ी सिटीज में जाओ, एंड इफ यू सी द फेयर देयर, यू विल सी द merry-go-round, जिसको आप लोग झूला बोलते हो, घूमता है, ठीक है, दैट्स कॉल्ड merry-go-round. उस पर बैठ करके और बच्चे एंजॉय करते हैं. सो कहते हैं कि ये उसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू रेजिस्ट हरसेल्फ, अपने आप को रोकना कि भाई मैं जाऊं कि ना जाऊं. और उसने जो है उसकी जो स्ट्रॉन्ग डिजायर थी, इच्छा थी जाने के लिए, उसने उसको भी दबाया. इवन दो शी हैड द मनी, हालांकि उसके पास पैसे थे, वो जा सकती थी, लेकिन उसको मनी जो है ना सेव करनी थी. देखो भाई, इस टेक्स्ट को रीड करने से हमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स, पहलू जो है पता चलते हैं. दैट इफ यू डिसाइड टू डू समथिंग, you have to sacrifice for that. उसके लिए आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा. and that is what you can see कि भाई किस तरह से उसने अपनी इच्छाओं को जो है दबाया, सेक्रीफाइस किया कि भाई मुझे ये करना है, ये नहीं करना है. राइट एवरीवन? तो अब उसने क्या किया है, कितना सेक्रीफाइस किया है इस जर्नी के लिए. तो जब कोई उससे कोई क्वेश्चन पूछेगा, सब सिली क्वेश्चंस, तो क्या उसका जवाब नहीं देगी? क्या उसको गुस्सा नहीं आएगा? She managed this for the last 6 months, और 1 साल से वो ये चीजें मैनेज करती आ रही है, चाहे 2 महीने हैं. But she paid attention, she paid time और calculations और recalculations. Now we are coming to know कि भाई किस तरह से वो फेयर में जाती है, फेयर में कुछ नहीं खरीदती है, ठीक है, merry-go-round वो देखती है, वहां पर भी झूला नहीं करती है बिल्कुल भी. After she had enough money saved, next problem was, अब उसने इनफ पैसे जो है इकट्ठे कर लिए for going to the to the right bus. अब पैसे उसके पास इनफ है, लेकिन अब नेक्स्ट प्रॉब्लम उसके लिए सामने खड़ी हो जाती है. भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या थी? हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज. घर से उसको बाहर जाना है और उसकी मदर को इसका पता भी ना चले. वो राइड करे, करके वापिस आ जाए, उसकी मदर को उसका कुछ पता ना चले. सीधा
consciousness, sense of judgment, sense of taking things in a very systematic way that she doesn't want to leave even a single loophole. On the basis of that, she'll be caught red-handed and will be punished. 8 years old girl is so conscious, taking so many precautions before proceeding. आगे बढ़ने से पहले वो हर पहलू को जो है पुख्ता करना चाहती है कि वे बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम. She doesn't want to face that. So अब प्रॉब्लम क्या आ गई कि उसे घर से जाना है बाहर. कितने मिनट का रास्ता है, कौन बताएगा? हाँ, very good, sit down. 45 minutes from village to town, and then again 45 from town to village, and in between that bus is going to stay at the station for 5 minutes or maybe 10 minutes, or somewhat it is 15 minutes. So ultimately how many hours? Around 1.5 to 2 hours. 1.5 से 2 घंटा उसको फाइनली लगने वाला था. सो प्रॉब्लम क्या आ गई कि उसको जाना है, उसकी मदर को पता ना चले, और वो आए तब भी उसकी मदर को पता ना चले. लेट्स सी हाउ शी कैलकुलेट्स दिस. बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी. लेकिन उसने जो है ना इस डिफिकल्टी को, बिना ज्यादा डिफिकल्टी के इस प्रॉब्लम को मैनेज कर लिया. एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप. नैप मीन्स क्या होता है? हाँ, टू स्लीप इन अ डे. दिन की जो झपकी होती है ना, दिन में जो झपकी लेना, एक्चुअली नैप होती है 15-20 मिनट की, आधा घंटा मैक्सिमम. इससे ज्यादा उसको नैप नहीं बोलते, उसको फिर स्लीपिंग ही बोलते हैं, राइट? नैप होती है कि व्हेन यू आर वर्किंग हार्ड और यू आर स्टडिंग हार्ड, देन यू टेक अ नैप ऑफ 15 to 20 minutes और हार्डली 30 minutes. दैट्स कॉल्ड नैप. लेकिन अगर इससे ज्यादा जाती है ना, दैट्स कॉल्ड स्लीप. उसको सोना बोलते हैं. सो होता क्या है कि उसकी मदर जो है ना सोती है फॉर अबाउट 1 to 4 और सो, यानी कि कितनी डेंजरस है उसकी मदर. अगर सो गई ना तो 1 घंटा तो मिनिमम है, 2 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं. यानी कि उसके, अब नाउ यू सी शी ऑब्जर्व्ड हर टाइम. अब उसको ऑब्जर्व करने में कितना टाइम इसको लगा होगा कि भाई 1 घंटा तो मिनिमम सोती है, लेकिन मैक्सिमम 4 भी हो जाते हैं और उससे ज्यादा भी हो जाते हैं. सोते सोते उठ ही नहीं पाती. दैट वुमन, हर मदर, जो उसकी मदर है, Valli always used these hours for her excursions. Excursions means here, जब भी उसकी मदर सोती है, स्लीप करती है, वल्ली जो है उसकी मदर के सोने के बाद अपने घर से बाहर जाती है, गलियों में घूमती है, एंजॉय करती है, देखती है, या फिर घर की जो अपनी डोरवे वहां पर खड़े होकर के शी लुक्स एट द बस, people boarding or deboarding from the bus, how their faces, gestures, how they feel, उन सब की देखती थी वो सारी की सारी. इसको एक्सकर्शन बोला गया है, राइट? इसको हम लोग आउटिंग भी बोलते हैं. दैट्स कॉल्ड दिस. सो अब वो करती क्या है, ये सारे काम करती थी. मीनवाइल हर मदर वाज टेकिंग नैप, राइट? उसकी मदर जो है नैप लेती है, लेकिन वो नैप नहीं थी, वो नैपा बन गया था. अब 1 से 4 घंटे कोई सो रहा है, हाउ कैन वी से दैट नैप? हाँ भी रामू, क्या अमन के पीछे क्या नाम है इसका? नाम मत बदला कर अपना, हर रोज नाम बदल लेता है. जब भी मिलता है कहता मेरा नाम रामू है. तो ठीक है, इट्स ओके. सोना नहीं अभी है उपेंद्र, सीधा बैठ. बिल्कुल लटकी मार गया था ये, ऐसे कर गया ये. शुगर है मैंने देख लिया, नहीं तो लग गया होता सर के सामने. नहीं, सीधा बैठ भी बिल्कुल एकदम से. सोना नहीं है. अमन ध्यान रख इसका. सिंचे सर लग जाएगा. चलो इट्स ओके. सी नाउ, अब होता क्या है, एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस. देखो जैसे मैंने बताया, एक्सकर्शन जो है बाहर घूमना या फिर डोरवे पे खड़े होकर के बाहर देखना. अदरवाइज पेरेंट्स थोड़े बोलेंगे. इज इट पॉसिबल कि आप घंटा 2 घंटे दरवाजे पर खड़े रहोकर बाहर वालों को आते जाते को देखो, एंजॉय करो? अरे वाह, ये तो हंस रहा था, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये बड़ा उदास था भाई, लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है. सी generally what we come to know that the parents don't allow us to stand on the doorway and to look out
अब बाहर वाले क्या सोचेंगे, पागल है, दरवाजे में खड़े होते हैं। सी, सो ये जो टाइम था, द नैप ऑफ हर मदर यूज्ड टू हेल्प हर टू हैव एक्सकर्शन, उससे वो जो है उस टाइम को इस तरह से एंजॉय करती थी वो। Let's complete this one only. Or sometimes even ventured out into the village, as I told you, ventured out into the village means उसको पता रहता था कि अब मम्मी सो गई है, चल निकल ले, फिर गलियों में घूमना, पॉन्ट्स पे जाना, to meet some sort of people there. So today these same hours could be used for her first excursion outside the village. And now this was the time when she was going to plan her excursion outside the village. She was going to town, from village to town, and this was the time. अब उसने हर चीज को कैलकुलेट कर लिया, मैनेज कर लिया कि भाई अब वो जो है बाहर जा रही है. She is going out for the excursion. So that's enough for today's lecture. Any one of you wants to ask any question? We'll try to finish it out by tomorrow. Rest we'll discuss. Abhi, wait.